السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ مدارس میں جو مدرسوں میں بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور آج کل زیادہ اس چیز کو جو ہے کھل کے سامنے آنا شروع ہوئی ہیں۔ ویسے تو شروع سے ہوتی آ رہی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے بہت سارے کیسز جو ہیں دب جاتے ہیں، اور لوگ اس کا بارے میں جو ہے بتاتے نہیں ہیں، یعنی بچے یہ خود سے گھر پہ بتاتے نہیں ہیں، اور کچھ فیملیز بتاتی نہیں ہیں کہ ہماری جو ہے بچے کی جو ہے بدنامی ہوگی اس طرح سے، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ چھوٹی فیملی ہوتی ہے، غریب خاندان ہوتا ہے، تو وہ اس لیے وہ خلاصہ نہیں کرتے اس چیز کو۔ بہرحال ابھی تو میڈیا کا دور چل رہا ہے، تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن ابھی بھی جو ہے نا سمجھ لیں آپ 90% جو ہے آپ کے سامنے وہ چیزیں نہیں آتی جو کہ مدارس میں چل رہی ہوتی ہیں۔ مدرسوں میں جو قاری صاحب ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات میں چل رہے ہیں، کیونکہ اسلام سے دوری ہوتی ہے، اور اسلام سے جب دوری ہوتی ہے تو ان کے دماغ میں وسوسے اور شیطان بھڑکا دیتا ہے، کیونکہ وہ ایک فرقے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، فرقے کے اندر ایک باؤنڈری وال ہے، اس سے باہر نکلیں گے تو اسلام کی ایک حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس چیز سے پھر آپ گناہوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب قرآن کو آپ ڈائریکٹ جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے معاملات میں کتنا سخت ہے۔ اس کے اندر جب آپ اس کی جو ہے نافرمانی کرو گے، اس کے اندر وہ سزائیں کتنی سخت دیتا ہے۔ تو جب اس چیز کو حقیقت میں آپ کو سامنے آئے گی، آپ کے سامنے پتہ چلے گا آپ کو، جب ہی آپ کا جو ہے ایمان پختہ ہوگا، اور اللہ سے آپ کے اندر جو ہے ڈر پیدا ہوگا کہ میں یہ کام کروں گا تو میں جو ہے اللہ مجھے پکڑ لے گا، مجھے اللہ تعالیٰ اس پہ سزا دے گا۔ اس لیے کام یہ زیادہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ جو ہے اسلام سے دوری ہوتی چلے جا رہی ہے، اور اپنے اپنے فرقوں کے اندر باندھ دیے گئے ہیں، اور ترجمے سے کہتے ہیں کہ پڑھو نہیں تو آپ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز دکھاؤں گا، وہ جو زیادتی کی گئی ہے مسجد کے اندر، لاڑکانہ کی مسجد میں محراب جہاں امام صاحب جماعت کراتے ہیں، وہاں پر وہ کام گندا کام کیا گیا ہے بچے کے ساتھ۔ اور اب دیکھیں وہاں پہ اگر ناپاکی کا کوئی معاملہ ہو گیا، اور امام مسجد جو نماز جماعت کرائے گا وہاں پہ، تو پیچھے جو مقتدی ہوں گے تو ان کی نماز کا کیا معاملہ ہوگا؟ اب سوچنے والی بات ہے۔ بہرحال آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو الیاس گھمن جو مولوی صاحب ہیں، الیاس گھمن دیوبند کے مولوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں شیعوں کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے موقف رکھوں گا۔ تو سب سے پہلے میں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوستو، پیش امام مسجد یاسین چانڈیو پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ کے نزدیکی علاقے ماہوٹا کی ایک مسجد میں 12 سال کے بچے کے ساتھ منہ کالا کرتے ہوئے، قوم لوط کا گناہ کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے 2024 مئی کا مہینہ 6 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ کے درمیان پکڑا گیا۔ دوستو آپ نے دیکھا وہ محراب کے اندر، مسجد کا محراب جو ہے اس کے پاس وہ دیکھیں ٹانگیں اٹھائی ہوئی ہیں بچے کی، اور کس طرح یہ نشانہ بناتے ہیں بچوں کو۔ میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی بنائی تھی اس کے اوپر کہ جو ہے پہلے وہ مدارس میں جو ہے ٹانگیں دبوانا شروع کرتے ہیں بچوں کے ساتھ۔ تو یہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں، آپ کے بچے جہاں بھی مدرسے میں پڑھنے جاتے ہیں ان سے گائیڈنس لینی چاہیے آپ کو، کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا رویہ پیش تو نہیں آ رہا، کوئی ایسی بات قاری صاحب نے کی ہو یا کسی نے بھی کی ہو۔ کوئی بھی باہر کا بندہ کر سکتا ہے، کوئی بھی ایسا بندہ کر سکتا ہے، کہیں بھی کر سکتا ہے، اسکول میں کر سکتا ہے، مدرسے میں کر سکتا ہے، ٹیوشن میں کر سکتا ہے، یا باہر محلے میں کر سکتا ہے، لیکن آپ نے اپنے بچے کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ کوئی بھی ایسی اس کے ساتھ کوئی گندی حرکت کرتا ہے، کوئی بندہ کوئی ایسی جگہوں پہ شرمگاہ پہ ٹچ کرتا ہے، تو وہ آپ کا کام ہے، فیملی والوں کا کام ہے، ماں کا کام ہے، باپ کا کام ہے کہ اس سے بچے سے پوچھیں کہ ایسا تو کوئی معاملہ نہیں پیش آتا۔ فرینڈلی ریئیکٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ، تاکہ ایسے معاملات میں جو ہے ان لوگوں کو جو ایسے کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، ان کو جو ہے صحیح ان کا معاملہ کر دیا جائے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے میں نے دکھا دیا۔ ایک اور واقعات تو بہت سارے ہیں اس کے اندر، میں آپ کو واقعہ دکھاتے رہ جاؤں گا، لیکن ویڈیو جو ہے چلتی رہے گی، ختم نہیں ہو سکے گی، اس لیے میں نے صرف 2 آپ کے سامنے ویڈیو رکھی ہیں۔ ایک بچے کے ساتھ ایک اور زیادتی ہوئی تھی، یہ میں میڈیا پرسن تو یہ شکل وغیرہ سب کچھ دکھا دیتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے یہ نہیں دکھائی، لیکن آپ سنیں بچے کی بات۔
तो कहता मुझे इधर मेरी टांगे दबा, मैं टांगे दबाने लगा, फिर मुझसे ये वाक़या करने लगा, गंदा काम करने लगा मुझसे। तो फिर इसने बैग खोला, मेरे से 500 रुपये इसने मुझे दिया। तो कहते तुमने कितने रखने रख लो, बाकी मुझे लाख दे। अच्छा, तो मैं घर गया, मामा को बताया रो रो के, तो मेरे मामा ने फिर पापा को बताया। तो आपको आने दिया था उसने वहाँ से कि आने भी नहीं था दे रहा? कहता किसी को नहीं बताना घर। अच्छा, इससे पहले भी कोई बच्चा है जिसके साथ उसने ज्यादती की है? मुझे तो नहीं पता। आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं। ये पता लग जाता ना कि और भी हो सकता है, और भी किसी बच्चों के साथ इस तरह के गलत काम करता हो। कोई पता नहीं पता आपको? अब देखें आपके सामने मैंने दिखा दिया आपको वीडियो में बच्चे के साथ क्या किया। पहले टांगे दबवाएं उससे, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उससे बात करना चाहिए। उसका जो कारी साहब जो होते हैं वो अपनी शर्मगाह बच्चे के हाथ में पकड़ाते हैं। फिर जो है, क्योंकि एक वाक़या हमारे साथ हमारे करीबी एक जानने वाला बंदा था, उसके साथ जो है हमने भी तालीम हासिल की थी मदरसे में। तो वो देवबंद का मदरसा था, उसके अंदर जो है मदरसे तो बहुत सारे हैं और हर मदरसे में जो है इस तरह के मामला पेश आ सकते हैं। तो अपने बच्चों पे नज़र आप तो कड़ी नज़र रखनी है। तो इस हवाले से देखें, बच्चे ने आपके सामने रख दिया कि उसको 500 रुपये दिए गए, इसी तरीके से वो पैसे दे देते हैं फिर जो है ताकि बच्चे का मुंह बंद कराया जा सके, बच्चा जो है घर पे जाके ना बताए। तो ये अब आगे चलते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं इलियास गुमन साहब का। इस हवाले से वो बताते हैं शिया उलमा की किताबों में, यानी शियाओं का जो मौक़िफ़ है, किताबें जो उनकी लिखी हुई हैं उसके अंदर जो है लोंडेबाजी जिसको कौमे लूत का अमल कहा जाता है, वो उसमें लिखा हुआ है कि ये जो है अमल जायज़ है और इससे जो है आजिज़ी पैदा होती है इंसान के अंदर। ये गुमन साहब का जो है मौक़िफ़ है। लेकिन ये देवबंद की किताबों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मामलात लिखे हुए हैं कि गधे के साथ बदफ़ेली और मुर्दे के साथ बदफ़ेली करना जायज़ है। तो इस तरह के मामला पहले भी पेश आए कि एक जो है कब्र से जो है किसी औरत की जो है कब्र से मुर्दा निकाल के और उसके साथ ज़्यादती की गई, उसको पुलिस ने पकड़ा। उसके बाद जो है वो फ़िक़्ह हनफ़ी का जो है वो दलाइल दे के और वो बाइज़्ज़त बरी हो गया उससे। तो बहरहाल आपके सामने मौक़िफ़ रखते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। को हक़ समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ्ती साहब ने माशाअल्लाह तफ़सीलन अपने दलाइल आपके सामने दिखा दिए हैं और सुना भी दिए हैं। एक वाला मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, एक बात आपको समझाने के लिए। जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, दुनिया में ये शिया इतना गंदा मज़हब है, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम सब ज़िना को हराम कहते हैं। शिया ज़िना का नाम ज़िना नहीं रखता बल्कि तोता रखता है। ये ज़िना के भी हलाल होने का कायल है, नाम उसका तोता रखता है। और इससे अगली गंदी हरकत कि शिया मज़हब में मर्दों के साथ बदफेली करना भी जायज़ है, जिससे आप लौंडेबाजी कहते हैं, लिवातत कहते हैं, हरामबाजी कहते हैं। शिया इसका भी ख्याल है। देखिए मेरे हाथ में किताब है, इस किताब में इख्तियार और मारिफत रिजाल, मशहूर इसका नाम है रिजाल कशी। ये देख रहे हैं? जी देख रहे हैं। इसकी है जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर 521। जिल्द नंबर 6 सफ़ा में 521। ये आप याद रख लें, रिजाल कशी जिल्द नंबर 6 सफ़ा में 521। इसमें रवायत निकल की है इनके एक बहुत बड़े शिये के बारे में जिसका नाम था मोहम्मद बिन नसीर नमीरी। ये इतना बड़ा हरामी किस्म का इंसान था। कहते हैं वज़ुकिर अन्नहु रआ बाज़ अन्नास मोहम्मद बिन नसीर अयाना। इसको बिल्कुल खुला देखा, छुप कर नहीं, एलानिया। इसने एक अपने पास मुस्तकिल लड़का रखा हुआ था बदफेली करवाने के लिए। वह गुलामुल लहू अला ज़हरी, लौंडा था, इस लौंडे से बदफेली करा रहा था। वह अन्नहु आतबु अला ज़ालिक, किसी ने कहा गंदे इंसान तू कैसा गंदा आदमी है, इतनी गंदी हरकतें करता है। उसने जवाब दिया, कहता है इन्ना हाज़ा मिनल लज़्ज़ात, ये जो काम मैं करवा रहा हूँ इससे मज़ा बढ़ाता है। ये जो मैं करवा रहा हूँ इससे मज़ा बहुत आता है। वह मिनत तवाज़ु लिल्लाह, और जो आदमी इससे करवाए तो अल्लाह की रज़ा के वास्ते इससे आर्जी पैदा हो। मज़हब हुआ ना, ये मज़हब। बतर के तजब्बुर, इससे इंसान की अकड़ खत्म हो जाती है।
तर्क तदब्बुर का माना कि इसकी आदमी की अकल खत्म हो जाती है। अब हम कहते हैं असल तरीका तो यह है कि अकल खत्म करने के लिए आदमी वही तरीका इख्तियार करे जिसको इनने खुद इख्तियार किया। कितनी गंदी हरकत है, कहते हैं इससे अल्लाह के लिए अर्जी पैदा होती है और आदमी की अकल खत्म हो जाती है। बगैर कानून चलते बात समझिए, तवज्जो रखो। मतलब ये कि मैंने हवाला आपके सामने मजाक बाजी के लिए नहीं किया, ये माहौल नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। एक इतना गंदा फिरका कि जो मर्दों के साथ बदफेली करने को जायज कहता है और दलीलें दो देता है। नंबर एक, इससे अर्जी पैदा होती है, नंबर दो, इससे तकब्बुर खत्म होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दुआ फरमाइए। हैं सुन्नी बुलाते शिया को। अब देखो बात समझो, बात समझो, दलाइल आपके सामने आ गए हैं, इसलिए हमारा हक ये बनता है अपने अकायद को समझें, अपने अकायद को याद करें और अपने अकायद की हिफाजत करें। इसके लिए अपनी भी हिफाजत करें, अपनी औलाद की भी, अपने रिश्तेदारों की भी हिफाजत करें। और हिफाजत के दो तरीके हैं, ये आपने इख्तियार करने हैं। नंबर एक, अपने उलमा से ताल्लुक़ रखें और नंबर दो, इन बदबख्तों से अलहदगी का इजहार करें। भाइयों एक सो दोस्तों, आपके सामने इलियास गुमन साहब का मैंने मौक़िफ़ पेश कर दिया। इन्होंने शियाओं की किताब से रेफरेंस दी और उन्होंने कहा कि वो कोई शख्स था जो है वो बदकारी करवाया करता था और वो उसने इसका मकसद ये बताया कि इससे आजिज़ी पैदा होती है और दूसरा ये कि तकब्बुर जो होता है इंसान के अंदर, गुरूर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि आप ये इन्होंने कहा कि अपने उलमा कराम से जो है पूछताछ, मतलब उनसे कनेक्टेड रहें आप। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आप फ़िरका वारियत से बाहर निकलें, ना आप किसी फ़िक़्ह हनफिया पे चलें, ना फ़िक़्ह जाफ़रिया पे चलें। आप किसी भी फ़िक़्ह पे चलने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप कुरान और हदीस को डायरेक्ट पकड़ें, क्योंकि फ़िरके टुकड़े टुकड़े होने का आपको मना किया गया है कुरान के अंदर। कुरान की आयत नंबर मैं पहले भी बता चुका हूँ, इससे मज़ीद पहले आपको और वीडियोस में भी बता चुका हूँ, रेफरेंस दे चुका हूँ इस हवाले से। कुरान की सूरे अनाम के अंदर आयत नंबर 159 के अंदर आप तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा फ़िरके ग्रुप टुकड़े टुकड़े नहीं होना। जो इस तरह के मामलात में चल रहे हैं उनका हिसाब अल्लाह खुद ले लेगा उस मामले में। और सूरे रूम की आयत नंबर 30 भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है 73 फ़िरके वाली, कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके बनेंगे और जन्नत में जाने वाला फ़िरका वही होगा जो कुरान और हदीस पे चलता हो, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलता होगा और असहाब के यानी सहाबा कराम के तरीके पे चलता होगा, वही जन्नती होगा ग्रो। तो ये फ़िरके टुकड़े टुकड़े मतलब आपने नहीं होना है। तो ये कुरान की आयत से और इस हदीस से आपको इस्तिदलाल करना है कि क्या मामलात हैं। तो मैंने आपके सामने ये मौक़िफ़ पेश कर दिया। लास्ट मौक़िफ़ की तरफ चलते हैं। इसके ऊपर फ़िक़्ह हनाफ की किताबों से भी रेफरेंस इंजीनियर साहब आपको पेश करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और करंट अफेयर जो आजकल एक वीडियो वायरल हुई है, अगरचे मेरा 1% भी कोई ना मूड था और ना कोई तबीयत माइल हो रही थी कि मैं इसे डिस्कस करता, क्योंकि मैंने पिछले 1 महीने में 2 मुख्तलिफ औकात के ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस किया। लेकिन चूंकि अब वाकया नया आया और ये बड़ी वर्स्ट फॉर्म में आया। लाड़काना के अंदर एक मौलाना साहब ने मस्जिद के मेहराब के अंदर एक बच्चे के साथ जबरदस्ती मुंह काला किया और उसकी वीडियो बनी हुई है। मुझे बताएं, मैं जो ये कहता था ना कि आम मुसलमान जो है ना वो मैयत की चरपाई को ना अंधेरे में देख के डर जाता है। मैयत ना रखी हुई हो, सिर्फ चरपाई रखी हो, और मौलवी जो है खुदा से नहीं डरता। मुझे बताएं, आप लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि उसने मस्जिद के अंदर ये सब कुछ किया। मैं ये देख रहा हूं कि एक गैर मुस्लिम जब ये देखेगा कि मस्जिद के मेहराब में जहां इमाम खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है, सबसे अफजल तरीन जगह मस्जिद की, उधर उस मस्जिद का इमाम नमाज नहीं पढ़ा रहा बल्कि एक 12 साल के बच्चे के साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसको तीसरी क्लास में उसका बाप दाखिल करवा के गया था कि ये इसे पढ़ाएगा। ये उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता आप देख ले। ये तो जिन लोगों के अपने बच्चे हैं ना, उनको इस तकलीफ का अंदाजा होगा। आम लोग तो सिर्फ इसे खबर के तौर पे देखते हैं।
जो खुद बच्चों वाले हैं ना उनसे पूछें, वो तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को सरेआम फांसी दी जाए, बिल्कुल सही। इनके टुकड़े टुकड़े किए जाए जो बच्चों के साथ ये कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर दीन इस्लाम की बदनामी का बायस बने हैं। जेलम की आप समझ लें, जिला जेलम के अंदर ही तहसील आती है दीना सिटी के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ, और अब ये लाड़काना वाला वाकया सिंध के अंदर भी, यानी सारे सूबों में ये आपको वाकयात मिल रहे हैं। और ये ना समझे कि आज कुछ लोगों को हो गया, ये पहले भी था, पहले असल में मीडिया नहीं था, ये चीजें हाईलाइट नहीं होती थी और ये खबरें दबाई जाती थी, लेकिन अब खबरें चंद एक बार आती हैं। अभी भी मैं आपको बताऊं 90% ज्यादा खबरें दब जाती हैं। तो अब एक एक करके इस तरह के जो वाकयात सामने आ रहे हैं, ये हमारे बड़ों के लिए, रियासती इदारों के लिए, उलमाए किराम के लिए भी, उलमाए कराइम के लिए भी, और सबसे बढ़कर मां बाप के लिए लम्हा फिक्री है कि बचा लो अपने बच्चों को इनके शर से। तो मुझे एक पाकिस्तान लेवल के बड़े अहले हदीस आलिम, मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा, जाहिर है फिर वो पर्सनल बात मैं कर रहा हूं, उन्होंने मुझे फोन पे कहा कि जी इंजीनियर साहब आपने बिल्कुल सही किया, ये हमारे फिरके के इस मौलवी ने गलत हरकत की है उसे सपोर्ट करके। और फिर कहने लगे चले मैं आपको एक बात अपनी जाती बता देता हूं, आपने मेरा नाम लिए बगैर किसी वीडियो में इसको जिक्र जरूर करना है। मैंने कहा जी बताएं। वो कहते हैं कि जब मुफ्ती अब्दुल अजीज का वो वाकया हुआ था ना, वो लाहौर वाला देवबंदी मुफ्ती जो 22 साल के बच्चे के साथ कर रहा था, उसकी वीडियो भी सामने निकली, और मदरसा खोल के बैठे हैं फिर मुफ्ती अब्दुल अजीज, ना समझो जेल लीजिए। तो वो अहले हदीस आलिम कहने लगे जब वो मुफ्ती अब्दुल अजीज की वीडियो बाहर आई ना, वो दिन है, आज का दिन है, मेरे घर में कोई मौलवी दाखिल नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? वो कहता है जी मेरी बीवी ने कहा कि अगर इस घर में कोई मौलवी आया तो मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। कहता है कि अब हालत यह है कि मेरे अपने बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ते हैं, कारी भी उतरवा दिया मेरी बीवी ने। ये एक अहले हदीस आलिम कह रहा है कि मेरी बीवी ने हमारे घर में जो कारी था वो भी उतरवा दिया। मुझे बताएं, अगर मौलवी अपने बच्चों के मामलात में दूसरे मौलवियों से डरते हैं तो तुसी मैं तो शाही कोई नहीं। सही। और ये सिलसिला मैंने आपको बताया सदियों से जारी है। हाँ, तारीख इब्ने कसीर में 8 से 700 साल पहले हाफिज इब्ने कसीर जिन्होंने तफसीर इब्ने कसीर लिखी, उनकी तारीख इब्ने कसीर भी है, अल बिदाया वन नहाया, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों इनको बुजुर्ग मानते हैं। उन्होंने तारीख इब्ने कसीर में लिखा, अपना तजुर्बा बयान किया। उन्होंने कहा कि कोई जज, कोई हुकूमती ओहदेदार, कोई फकीह, कोई मुफ्ती, कोई आलिम ऐसा नहीं है जो इस बदफेली के काम में मुब्तला ना हो, सवाए उसके कि जिसे अल्लाह महफूज कर ले और उनका अपने बच्चों को इन मौलवियों की पहुंच से दूर रखें, खुसूसन सफर के दौरान। उस जमाने में ज़ाहिर है सफर में तो बिल्कुल ही एक मामला आंखों से ओझल होने वाला, टॉयलेट के लिए भी आपको जंगलात में जाना पड़ता था। 700 साल पहले वो कह रहे हैं कि अपने बच्चों को मौलवियों की पहुंच से दूर रखें। कौन? हाफिज इब्ने कसीर। जब मैंने ये बात की थी अब्दुस्तार ईदी साहब वाले इशू के ऊपर, तो सारे मौलवियों को तकलीफ हुई थी कि इंजीनियर साहब ने तो सारे मदारिस को कह दिया। भाई मैंने सारे मदारिस में सारे बच्चों के साथ ये बात नहीं की, लेकिन सारे मदारिस में ये काम जरूर होता है। हाफिज इब्ने कसीर से मैंने नहीं लिखवाया, सबके साथ नहीं होता, हमें पता है गरीबों के बच्चों के साथ होता है, जो बेचारे 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज होते हैं, मां बाप उनको दाखिल करवाते हैं, अमीरों के बच्चों को ये हाथ नहीं डालते हैं। बड़े होशियार हैं, मैं आपको बताऊं, उन्हें पता है कि वो थाने में करवा देंगे। हमेशा गरीब गरीब किस्म के बच्चे हैं जिनके साथ ये लोग करते हैं, जबरदस्ती वाला मामला। तो ये शुरू से होता है। फिर मियां लोग क्या कहेंगे? अब ये मैंने तो नहीं दाखिल करवाया ना, अशरफ अली थानवी साहब ने किताब लिखी है अरवाह सलासा, और लिखा है कि 3 औलिया की हकायात, अरवाह सलासा 3 रूहें, हकायात औलिया। और कौन लिख रहा है? अशरफ अली थानवी, मैंने नहीं लिखवाया उनसे। और 3 औलिया कौन है? उनके अपने बुजुर्ग कासिम ननौतवी साहब, रशीद अहमद गंगोई साहब। अच्छा, उनके बारे में वो लिखते हैं कि एक किसी मदरसे के प्रोग्राम में जलसे के दौरान पब्लिकली कासिम मियां को बुलवाया रशीद अहमद गंगोई ने,
اور انہیں اپنے ساتھ چارپائی پہ لٹایا. ہاں عاشق صادق کی طرح یہ الفاظ ہے اس میں. اور پھر کروٹ بھی ان کی طرف کی اور ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بس ادھر تک جب پہنچے انہوں نے کہا کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا میاں. ظاہر پنجابی ہوتے ہیں نا, قاسم میاں اگر پنجابی ہوتے ہیں نا تو انہوں نے یہ کہا کیا کر رہا ہے, کہڑے پاسے چل رہے ہیں. وہ جو کہ اردو سپیکنگ تھے انہوں نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے. لیکن رشید احمد گنگوئی صاحب باز نہیں آئے. انہوں نے کہا کہنے دو لوگوں کو جو کہتے ہیں دیوبند دماغ بند. انہوں نے کہا کہ بچوں کے دماغ بند ہیں چھوڑیں. چلو یہ ایک اوپن مجمع میں واقعہ ہوا تھا. آپ مجھے صرف یہ بتائیں اگر اس کی ویڈیو ریکارڈ ہوتی کہ ایک مولوی دوسرے مولوی کو لٹا رہا ہے, عاشق صادق کی طرح کروٹ کر رہا ہے اور یہ کر رہے رہتے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ کہہ رہے آگے نہیں گیا. او بھائی سارے سامنے اتنے تک جانا سی نا, آگے سامنے تک نہیں جا رہا. ہاں اور کتنا آگے جانا. اچھا یہ ویڈیو اگر ہوتی تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کچھ نہیں ہونا تھا. اس کا چیخنا بھی بتا رہا ہے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے. پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹا. انہوں نے کہا میں فیض دوں گا جائز طریقے سے. ہاں المولانا میں نے لکھا کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں. انہوں نے کہا میں فیض دوں گا جائز طریقے سے فیض دوں گا. اس پہ بات ختم نہیں ہوئی میرے بھائی. اس کے بعد تذکرۃ الرشید کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن رشید احمد گنگوئی صاحب وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں. یار تو شیطانی خواب ویکھے اسی اللہ دے بندے, تو انہوں اپنے دماغ ہی رکھدا, انہوں لوگوں نے بیان کر کے انجینئر صاحب دے ہاتھی بندوق دینے کی کیڑی ضرورت تھی. اور تھانوی صاحب کو بھی کیا ضرورت تھی کہ وہ نقل کرتے, ورنہ سی سی ٹی وی کیمرے کی تو ویڈیو کوئی نہیں تھی. قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے. اس میں بھی بس وہ کہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا جو ایک میاں بیوی کو پہنچتا ہے. ہاں وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی. ہاں وہی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کی تعبیر یہ ہے کہ قاسم میاں جو ہے وہ رشید احمد گنگوئی کے اسٹوڈنٹس کی بعد میں تربیت کریں گے, اس لیے وہ بیوی کی شکل میں ان کو دیکھا گیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی بیوی جو ہے وہ قاسم کی شکل میں دیکھی ہے, نہیں, انہوں نے کہا قاسم میاں دلہن کی شکل میں آئے ہیں. جو پوری دیہڑی سوچتے ہیں نا وہی کوئی خواب ہی نظر آتا ہے. دیہڑی اسی لٹاؤ گے ایک خواب ہی نظر آئے گا نا تو. اچھا اب یہ جب ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں مفتی کہتے ہیں دیکھیں سامنے مسکرے بیٹھے ہوئے حاضر, اور مسکرے تو تمہارے مولویاں ہیں, کام تمہارے ابے ڈال کے گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرتے رہے ہیں, گرے مجھے کرتے ہو. اور لکھا تمہارے تھانوی نے ہے, میں نے لکھا ہے, یا میں نے انہوں نے گن پوائنٹ پہ میں نے لٹایا ہو کہ لیٹو تو ہے نال ہوئے تاکہ میں تیری ویڈیو بناوا پھر میں جو بندیاں تو ساڑھاں گا. وہ پیٹو پر بھاویاں ہوں یار. لوگ تو اپنی اولاد کی وجہ سے منہ چھپاتے ہیں کہ ہماری اولاد خراب نکلی, اور تم ایسے بدبخت ہو اپنے بابوں کی وجہ سے منہ چھپاتے بیٹو کہ ساڑھے ابے کی سزا نکلے ہیں. پیٹو انہوں جا کے ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. اے جی سینے سے فیض اور قبر سے فیض بھی اسی روایت سلاسل میں لکھا ہے کہ جی قاسم میاں مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے, خواب میں نہیں بیداری میں, جو بند کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. ایک بریلوی لکھ رہے تھے مشرک, تو اسی لکھو تھے مواعد نصرت ہوئے. تو یہ کام پیچھے سے خراب ہوا ہے بھائی. ہاں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے سے کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے. یا تم سے تو کرسچن اچھے نکل آئے ہیں, انہوں نے سپاٹ لائٹ فلم بنائی ہے ویٹیکن سٹی کے جو بشپ ہے نا وہاں بیٹھے ہوئے جو لڑکوں کے ساتھ کرتے ہیں منہ کالا, اور جو وہاں پہ نندے ہیں ان کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں وہ انہوں نے اس کے اوپر فلم بنائی ہے باقاعدہ, اور کنفیشن کی ہے ویڈیوز میں آگے کہ یار یہ کرتے ہیں یہاں پہ لوگ. ادھر تو کسی نے کہا جی کرسچینٹی بدنام ہو رہی ہے, تم لوگ مسجد کے محرابوں میں کھڑے ہو کے یہ کام ڈالو, اور جب ہم ہائی لائٹ کریں تو کہتے ہیں جی یہ سب بدنام کرتے ہیں. سو دوستو آپ کے سامنے میں نے موقف پیش کر دیا اس حوالے سے. الیاس گمن صاحب نے جو موقف بتایا ابھی رکھا تھا آپ کے سامنے کہ فقہ جعفریہ کی جو کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ وہ جو ہے
इस तरह की बदकारी को जायज़ समझते हैं, तो आप अपनी किताबों में भी खोल के देखें, इस तरह की बदकारियाँ बहुत सारी लिखी हुई हैं। तो किसी के ऊपर जो है इस तरह के मामलात में अटैक नहीं करें, आप अपने अंदर भी देखें आपकी किताबों में भी क्या लिखा हुआ है। तो बात यही है, आप तक ये पहुँचाने का मकसद ये था कि ये फ़िरका वारियत, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और इसको बुरा भला कहा जाता है, अपनी तरफ भी बुरा भला कहा जाता है, फिर वो इनको बुरा भला कहता है। तो इन चीज़ों से आप बाहर निकलें, फ़िरका वारियत से बाहर निकलें। कुरान भी हमें कह रहा है फ़िरका वारियत के अंदर आपने नहीं दाखिल होना है, ग्रोह नहीं होना है, आपने फ़िरके बटना नहीं है आपने। और हदीस भी इसको सपोर्ट करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मिलती है कि यहूदी नसारा में जो है 72 फ़िरके थे, मेरी उम्मत में 73 फ़िरके होंगे, वो भी हदीस आप खोल के पढ़ें और कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कुरान और तौहीद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला आपको किस चीज़ से रोक रहे हैं। तो ये आपको एक एक चीज़ समझ आना शुरू हो जाएगी। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे और आप भी सदके जारिया में शामिल हो जाएं। तो जो माँ बाप बच्चों को मदरसे भेजते हैं वो जो है इन चीज़ों का ध्यान रखें और जो है, क्योंकि ये बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं माशरे के अंदर और अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर जो है लोगों के दिमाग से, दिलों से निकल चुका है। और इनमें जो है ये कारी जो मदरसों में बच्चों को पढ़ाते हैं, इमाम मस्जिद, तो इस तरह के मामलात में उलमा कराम भी शामिल होते हैं कुछ। तो मैं हर बंदे की बात नहीं कर रहा, हर बंदा एक जैसा नहीं होता। बहुत सारे उलमा कराम अच्छे हैं, बहुत सारे मौलवी अच्छे होते हैं, बहुत सारे मौज़िन अच्छे होते हैं, बहुत सारे जो ज़िम्मेदारियाँ उठाई हुई हैं मस्जिद की वो अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो इन कामों में भी होते हैं। तो आपके सामने इंजीनियर साहब ने भी एक मौक़िफ़ आपके सामने रख दिया और इस हवाले से यही है कि पेरेंट्स को चाहिए कि बैड टच का बताएं बच्चों को कि बैड टच क्या होता है। बैड टच का मतलब ये है कि गंदी, मतलब ऐसी जगहों पे कोई टच करे तो माँ बाप को यानी पेरेंट्स को बच्चे बताएं। तो ये चीज़ की उनको नॉलेज दें, इस चीज़ की तालीम दें ताकि बच्चों तक ये जो है नॉलेज पहुँचे और कोई भी बैड टच करता है तो आप तक वो बात पहुँचाएँ ताकि आप इस चीज़ को रोक सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू सबका तू